Hello and welcome to the Gulley Kirkit Show. Yeah, you have Shayan with me and Sheharyar, and we have a special guest today. Well, not really a special guest, but making a comeback with us today. Here is Archit Singh, and on today's episode, हम लोग review करेंगे India versus New Zealand and Pakistan versus England as well. क्योंकि दोनों गेम एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक इंडिया के गेम के बारे में भी बात करें जो सीरीज जिस तरह स्टार्ट हुई है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की. New Zealand had a very interesting win. Nobody really expected that India would be all out for 46 और उसी तरीके से कम बैक करना उसी तरह डोमिनेट करना न्यूजीलैंड को आई थिंक 460 ऐसे कुछ बनाया था उन्होंने. सचिन रविंद्र की सेंचुरी थी एंड सेकंड इनिंग्स में इंडिया मेड अ बिग कम बैक बट वन वुड से कि far too late in the game. We are far too, I would say far too late in the game. But सरफराज खान की एक innings और ऋषभ पंत की innings काफ़ी बेशुमार थी, काफ़ी aggressive थी और उन लोगों की intent में भी काफ़ी difference नज़र आया. मतलब they looked hungry for runs. I don't know कि ये इसमें कितनी if I felt it or if everybody else felt that as well, but the intent behind their innings was different. It looked fresh. It looked like they really wanted to get the point across. But unfortunately, at the end of the day, fourth innings, 107 runs, just not enough to defend on that track, which offered to both spinners and seamers. So, Harshit, any क्या थॉट्स हैं पहले टेस्ट के बारे में? पहले उसका थोड़ा बात कर लेते हैं and then we will dive into the second test. So I think 46 all out is problematic. Matlab, mine goes back to 36 all out as well. Given they are crumbling, they are really crumbling. And then I think रोहित शर्मा ने बोला कि भाई पिच तो गलत हो गया, रीड गलत किया. So because of that, they had the wrong bowling attack as well. I think they needed a seamer. They did not have one. And not only that, when they had to defend 107, Ashwin was nowhere to be found. So they were one bowler, मतलब एक और bowler कम हो गया. Not only your एक seamer कम हो रहा है, जो spinner भी है, he's also not operating at great level. I think overall, a lot of positives on India, because they wanted somebody in the middle order and not Kohli and Rohit to only deliver. और भी लोग थे जो डिलीवर कर रहे हैं. ऋषभ पंत इज ऑन अ कमबैक, राइट. हम चाह रहे हैं कि वो और टेस्ट क्रिकेट खेले. बीजेटी आ रहा है हमारा अभी, तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लाइक शान सेड कि हंगर है. आई थिंक पंत प्लेड द वे ही प्लेस. आई थिंक वो वैसे ही खेलता है. सरफराज में ऑब्वियसली हंगर है. यू लुक एट एन इंडियन मिडिल ऑर्डर जो एकदम जैम पैक्ड है, राइट. उसमें सरफराज हैज टू बी हंग्री. एंड गुड थिंग ये है कि अभी हम इंडिया में खेल रहे हैं, सो आई थिंक दीज आर नोन कंडीशन फॉर हिम. और उसका कितना 70-75 का एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इंडिया के अंदर. सो ही नोज द कंडीशंस वेल. ही इज एबल टू प्ले दैट अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट. और अच्छी चीज पूरे इसमें ये लगी कि आफ्टर 46 ऑल आउट, every other session India tried to dominate. That's the best part. कि किसी को ये नहीं लग रहा था कि गया मैच. अब everyone is expecting कि हाँ भाई विल मेक अ कमबैक एंड वी कैन कम बैक स्ट्रॉन्गर. और हो सकता है लास्ट इनिंग में हम 200 का टारगेट दे दें तो वी माइट बी एबल टू डू समथिंग. आफ्टर लॉन्ग टाइम इतना पॉजिटिव एटीट्यूड मैंने देखा है इवन फ्रॉम द फैंस टुवर्ड्स द इंडियन क्रिकेट टीम कि दे बिलीव कि ये कर सकते हैं. एंड एकदम से नहीं हुआ है. आई मीन दे वन टू बैक सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया विजिट करते हुए उनको, राइट. तो वहाँ का I think there is some emotion and some reassurance कि we can do well when our backs are to the corner. And अच्छी चीज ये है कि people are responding. Kohli had a good 70, right, in that. So ऐसा नहीं है. तो people were chipping in, they were coming in, runs आ रहे थे. Overall, I would say कि 46 all out के सिवा India almost did everything right. The only other thing they could have done is कि वो 450 पौने 500 रन के बजाय कुछ 700 बना देते, तो वहाँ पे गेम could have been anything. बारिश वारिश शायद कुछ हो जाता. बट अगेन
बिकॉज इंडिया ने कम बैक इतना अच्छा किया, आई थिंक द फैंस आर ओके. You feel okay as a Indian fan, and downside इस victory का ये होगा कि India will make sure next track is spinning from ball number 1, and then Yeah, they'll go back to that कि पता नहीं कितने 4-5 स्पिनर खिला देंगे. yeah. And then it will be like अब बस कर लो तुम. Right, that is what is I think is going to happen. I think uh, Pune में है ना next game. yes, next Yeah, game is in Pune में actually they can make a good seeming track, लेकिन obviously बनाएंगे नहीं. ट्रबल हो जाता है वहां पे इंडिया को. सो और इससे सबसे बड़ी चीज ये है कि ऑन अ सीमिंग विकेट इंडिया हैज बीन फाउंड वांटिंग मल्टीपल टाइम्स. कि लगभग इसी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट 2019 T20 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और ऐसे हो गए सारे धाराशाही. सो व्हेन द बॉल इज स्विंगिंग एंड सीमिंग, बैट चलाने के सिवा कोई टेक्निक वाला प्लेयर नहीं है. I think Rishabh Pant did play a few balls. हमारा लेफ्टी ओपनर जायसवाल ही प्लेड अ फ्यू बॉल्स, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ठहर ही नहीं पाया. वी नेवर रीच्ड अ पॉइंट वेयर वी आर इन ओवर नंबर 40 और वहां से वी कैन मे बी स्कोर क्विक रन्स फॉर नेक्स्ट 20-30 ओवर्स. वी कुड नॉट रीच टू दैट पॉइंट. तो एकदम ही हैंडीकैप हो गया सिचुएशन आफ्टर फर्स्ट इनिंग. लेकिन not to lose by an innings, or to at least have a fighting chance for most of the only 2 sessions जो गेम के अंदर अगेंस्ट इंडिया गए वो पहला सेशन था और आखिरी सेशन था. आखिरी सेशन में बिकॉज दे डिड नॉट रियली हैव एनीथिंग टू डिफेंड, और फर्स्ट सेशन में दे गॉट 46 ऑल आउट. उसके सिवा दे प्लेड गुड क्रिकेट, एंड विच इज अ चेंज. मतलब ये चेंज, अदरवाइज क्या होता है कि हम मैच हारते तो हार ही गए. You come back in the next game and the third game and fourth game, but they're they're trying to make a match out of it from any situation. So that is good to see. As a Indian cricket fan, you find it कि okay, now you are reaching to that level जहाँ पे कि आप ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऑफ 2000 कि भाई they are able to win the game from any situation. So yeah, and kudos to Rohit Sharma's captaincy. I think it took good 3 years for him to show off his captaincy skills. लेकिन अब वो दिख रहे हैं. Now you are seeing, and too bad for India, he's just on wrong side of 35. अगर हम लोग थोड़ी सी उसकी इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स की बात करें, अपार्ट फ्रॉम रोहित शर्मा विकेट जो आगे बढ़ के वो मारना चाह रहे थे, आई थिंक एवरी अदर इंडियन बैटर एंड मे बी सरफराज खान, एवरी अदर इंडियन बैटर गॉट अ गुड बॉल. जिस मतलब बाकी में इट लुक लाइक ए बॉल हिला है, यू नो, you will have to say it was good bowling by New Zealand. Yes, मतलब कोई डिनाई नहीं करेगा कि ट्रैक वाज चैलेंजिंग, लेकिन 50 ओवर के लिए चैलेंजिंग नहीं था. मतलब आर वी रियली गुड एट लीविंग द बॉल? इज दैट व्हाट हैपेंड? कि मतलब कितना हमने लीव कर दिया या क्या कर दिया. और इतना ही बुरा कैसे बोले कि the track, okay, if Indian cricket team is getting all out of 46 runs, then the track better be unfit to play. मतलब apart from that, कितना भी swing या seam हो भाई, you are professional players, you have best of the best resources. मतलब क्या नहीं है तुम्हारे पास और अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हो. So if you're not able to read the pitch, यार bowling अच्छा किया उन्होंने, no doubt about it. Not saying no, लेकिन 46 is a bit too less. मतलब वहां से ऐसा हो गया ना कि यू वर नेवर इन द गेम, नाउ यू वर, भाई बहुत डिफिकल्ट है. इट इज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट. I think five ducks were, I believe हाँ, five ducks, यस, five इन ducks टॉप were this 7 innings. बैट्समैन देयर 5 डक्स. या Yeah. बट But एक चीज में ये पॉजिटिव लगी थी कि पूरे पूरे गेम में fighting spirit was there, but second innings में they really took the game to the New Zealand bowlers. मतलब I think हर किसी, I think even जयसवाल का भी स्ट्राइक रेट 60 से ऊपर था. 60 का ऊपर जयसवाल का स्ट्राइक रेट, शर्मा 80, विराट कोहली 70 पे था, और सरफराज खान ने तो पहला ही पूरा. तो आई थिंक इसमें क्या हुआ कि यू हैव टू टेक इन कॉन्टेक्स्ट जो बांग्लादेश के अगेंस्ट गेम खेला था, जहाँ पे सब बारिश ही बारिश हो गई.
and they came out and scored at 8 and over. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि see, this is what I'm saying, right? This is the new brand of cricket which India is playing. कि वो किसी भी सिचुएशन से गेम जीतने का कॉन्फिडेंस है, एंड व्यूअर्स को वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि भाई 2 दिन बाकी है, 3 इनिंग्स बाकी है, क्या करेंगे, जीत जाएंगे, इट्स ओके, ठीक है, 46 ऑल आउट हो गए, अब क्या करें, यहाँ से कैसे जीत सकते हैं, ओके, दिस इज हाउ यू विन. तो वो एक चीज क्या कहते हैं, दैट यू कैन सी फॉर अ चेंज, फॉर अ 90s किड लाइक मी, जो जिसने कि लो पॉइंट देखा इंडियन क्रिकेट टीम का कि 17 रन चाहिए, 5 विकेट हाथ में, तो भी हार जाएंगे. मतलब गारंटी नहीं है जीतने की, कभी भी हार जाएंगे, राइट? कहीं से भी हम 5 विकेट चले जाएंगे. From those things to come to a place where your team is 46 all out, but you have confidence कि नहीं भाई, we have enough असला and बारूद to make a game out of it, और कर देंगे. That is there. और वो बांग्लादेश वाले गेम में भी ऐसा दिखा कि सब बारिश वारिश हो गई, आके मारना शुरू गए, तो मार ही दिया फिर अच्छे से, no holds bar, right? So I guess that's the thing that they are doing. But having said that, I guess ये अच्छे से डिफरेंस दिख रहा है कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक में क्या फर्क है. On New Zealand's good day, they will get you out for 46. So are you ready for At these home. moments at home? Yeah. तो यार ये एट होम वाला ना थोड़ा सा ट्रिकी है, कहने में अच्छा लगता है, बट एट होम में तब मान लेता है जब स्पिन से आउट कर देते हैं. If the condition becomes swing and seam, then it was more home for New Zealand in the first 2 hours, right? So it's not that कि हमारे conditions में आके उन्होंने spin bowling से आउट कर दिया. I don't think that is वो अभी हो जाएगा पुणे वाले I think टेस्ट मैच में. Let's see. लास्ट इंडिया टूर पे एजाज पटेल ने 10 विकेटें ली थी ना, इंडिया में ली Yes. थी. Yeah. Yeah. And they lost the game. But वो एजाज पर उसके बाद वो ड्रॉप हो गया, नेक्स्ट सीरीज ही डिडंट प्ले. So I guess that is the maturity of team selection. यही मैं बात कर रहा था, I guess before our podcast started, शेरयार के साथ, right? That the logic behind Sarfraz maybe not playing the next game is how mature and developed are you in your thinking. It might not be okay in certain circumstances, लेकिन you have a vision कि भाई हमारे ये प्लेयर है, वो इंजर्ड हो गया तो कोई और आया, अगर कोई और मेरे प्लेयर को रिप्लेस कर रहा है, तो बेस्ट केस सिनेरियो यही है ना कि वो खूब सारे रन बना दे. दिस इज व्हाट यू वांट, कि whoever comes in performs. तो ठीक है, बट I'm really interested to see what happens. But yeah. ऐसे ये एक विजन है. और आपको लगता है कि अगर हमारी टीम में कोई 150 रन मारता है और अगले गेम में उसकी पोटेंशियल या उसकी ड्रॉप करने की बातें कर रहे हैं या रेस्ट करने की बातें कर रहे हो, कभी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान टीम में ऐसी बात हो रही होती है? उसको तो 10 साल तक खींच लेंगे वो तो 150 रन पे. नहीं, इंडिया में कर सकते हैं ये बातें. बट अर्षद, मैं थोड़ा सा ना डिस्कस करना चाह रहा था बॉलिंग. तो लाइक यू सेड कि जब हम पहले बात कर रहे थे तो एवरीबडी वाज क्रिटिसाइजिंग, जितना मैंने पढ़ा है इंडिया की लॉस के बाद के जी के, वो रोहित शर्मा ने पिच रीड नहीं की सही से, और आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों ली, और 46 ऑल आउट हो गए, एंड देन यू नो व्हेन यू गाइस केम टू बोल तो आपने उनसे 400 रन खा लिए एंड व्हाट नॉट. तो बॉलिंग को अगर हम देखें तो इंडिया ने 2 सीमर खिलाए, बुमराह एंड सिराज, राइट? बुमराह पहली इनिंग्स में कोई बहुत इतना इफेक्टिव नहीं था, एंड आई थिंक सिराज का बहुत ही कोई ऑर्डिनरी सा ये टेस्ट मैच किया. तो अगर इफ दे वुड हैव रेड द पिच करेक्टली, और अगर वो कोई एक और एडिशनल सीमर खिलाते, तो डू यू थिंक इट वुड हैव मेड अ डिफरेंस बाय हैविंग अनदर सीमर? आई थिंक इट वुड हैव, क्योंकि सिराज से तो बेटर ही बॉलिंग करता जो भी आता, बिकॉज सिराज वाज नॉट हिज यूजुअल सेल्फ, राइट? एंड अब वही होता है ना, हालात वैसे हो जाते हैं कि अश्विन के हाथ से बॉल गिर नहीं रहा है, जडेजा के लिए वो पिच में उतना मूवमेंट नहीं है कि नेचुरल वेरिएशन मिल जाए. बुमराह इज बॉलिंग इज हार्ट आउट. जब वो डिफेंस, वो तो मैंने पूरा का पूरा उनका चेज देखा है.
न्यूजीलैंड का जो 4th इनिंग चेज है. So Bumrah bowled his heart out in the second innings. काफी अच्छे से. If they had one more seamer, maybe things would have been different. वो और तीसरा सीमर कौन होता? आकाशदीप. आकाशदीप इज आवर न्यू मुकेश कुमार. वो हम पता नहीं क्या हो रहा है कि एकदम से जैसे एक लड़का है प्रसिद्ध कृष्णा. वो आया, फिर उसको बहुत मौके मिले, मतलब ऑल फॉर्मेट बॉलर बनते पता नहीं गायब ही हो गया वो. ठीक है, एकदम इंजरी हुआ, क्या हुआ, वर्ल्ड कप में ही वाज ट्रैवलिंग रिजर्व विद द इंडियन टीम 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप. फिर पता नहीं कहाँ गया वो. उसके बाद फिर ये उस टाइम पे लेके आया मुकेश कुमार को कि वो मुकेश कुमार इज द नेक्स्ट शमी, कि वो शमी की तरह डालता है, एकदम क्लीन एक्शन है, ये है वो है. सारे फॉर्मेट खिला दिए उसको, ऑल फॉर्मेट. वो एकदम से गायब हो गया, वो भी कहीं पे भी नहीं है. उसके बाद अब ये नया लौंडा लेके आया ये ठीक है, आकाशदीप. लुक्स टू बी अ स्टेडी कस्टमर. आई थिंक ही इज गुड. उसने बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया था. लेट्स सी व्हाट ही डज नेक्स्ट. लेकिन इसमें truly the player which I'm watching out for is our new seam bowling all-rounder Nitish Kumar Reddy. So he's the one guy जिसने अभी एक T20 गेम में उसको I guess नंबर 4 उन्होंने भेजा है, and he scored 35 बॉल 70 या कुछ ऐसा उसने किया है. So he is our first Hardik Pandya replacement, and Hardik Pandya does not play Test cricket anyways. So maybe so things I guess. And अब क्या हो रहा है कि जो हमारा बेंच स्ट्रेंथ हो रहा है बॉलिंग का ना, वो धीरे धीरे बनते चले जा रहा है. जहाँ पे कि आप 3 या 4 लोग इंडियन क्रिकेट टीम के साथ ट्रैवलिंग रिजर्व रखते हो, ऑल्सो एज नेट बॉलर्स. सो थिंग्स आर मूविंग. आई थिंक थिंग्स आर मूविंग. और जैसे जैसे आईपीएल और थोड़ा बढ़ेगा ना, जब अभी तो स्काउट्स हैं, लोगों की ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं, ये थोड़ा और डीप रूट हो जाएगा, तो आई थिंक यू विल गेट मोर टैलेंट coming out of India, at least in fast bowling. But yes, to answer Sherry's question कि यार वो कुलदीप को नहीं खिलाते, कुलदीप की जगह खिला लेते. एक्चुअली उन्होंने मेरे हिसाब से तो कुलदीप की जगह वो अक्षर को भी खिला सकते थे बैटिंग स्ट्रांग करने के लिए. बट उन्होंने सोचा कि ये टर्न करेगा तो क्या बोलते हैं, विल बी एबल टू यूज कुलदीप. और कुलदीप वाज एक्चुअली बॉलिंग वेल, तो उसको खिला लिया. बट अभी नेक्स्ट मैच में देव एडेड सुंदर. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो अक्षर को खिलाते हैं कि सुंदर को खिलाते हैं. दो में से किसको खिलाते हैं, बिकॉज वाशिंगटन सुंदर इज आवर नेक्स्ट अश्विन. मतलब ही इज ओनली रियल ऑफ स्पिनर विच इज गोइंग अराउंड हु कैन बैट. और कोई ऐसा ऑफ स्पिनर भी नहीं है प्रॉपर, जो एक्चुअली ऑफ स्पिनर वैसे ही खत्म हो गया अगर वर्ल्ड क्रिकेट में. आई डोंट थिंक देयर इज स्पेस फॉर अ ग्राम स्पॉन एनी मोर, क्योंकि T20 में तो कबूतर बना के मार देते हैं ऑफ स्पिनर. राइट. आई थिंक उसमें ट्रेडिशनल जगह है ऑफ नहीं. स्पिनर पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में भी क्या नेथन लाइन है, बस and that's it. I guess he's the one. Yes, who's He's a the only pure. one. He's Pure the off only spinner. one. Pure और off कोई नया spinner. Yes. लौंडा कोई आया नहीं है. आई मीन मे बी आप साजिद खान को कंपेयर करें, बट वो भी बहुत नया है. बट क्या कहते हैं, खैर आई मीन वाइड बॉल मैं- में तो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आते. से आपको नहीं, वाइड बॉल में तो ऑलराउंडर्स बिल्कुल नजर नजर आएंगे, नहीं बट वाइड बॉल में प्योरली प्रॉब्लम ये हो गया है. हाँ, इन्होंने ना वो जो दायरे के अंदर रखना ही शुरू कर दिया ना, यू हैव ओनली 4 फील्डर आउटसाइड फॉर गुड चंक ऑफ. तो अब क्या करोगे भाई, यू नीड ऑफ स्पिनर. भाई बचना बहुत मुश्किल है, इतना नहीं यार, पावर मगर हिटिंग पता है, प्रैक्टिस करते हैं. मगर उसके अलावा भी अगर आप देखें ना, तो लाइक जो भी अब स्पिनर खेल रहा है ना इन वाइड बॉल क्रिकेट, देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द स्पिनर्स आप देखेंगे ना, तो उनका बॉल कोई इतना ज़्यादा टर्न वर्न नहीं होता. दे दे बेसिकली टेक विकेट्स इन टर्म्स ऑफ कि वो अपनी फ्लाइट पेस कैसी वेरी कर रहे हैं और अपनी लेंथ कैसे वेरी कर रहे हैं. दैट्स द ओनली वे दे आर गेटिंग विकेट्स. अदरवाइज उनका कोई, जैसे पहले के ज़माने में हम देखते थे अर्ली 2000s में, ठीक है कि वो पुराना बॉल था एंड वॉट नॉट, मगर यार बॉल टर्न होता था. लाइक 50 ओवर में भी बॉल टर्न होता था, अच्छा खासा टर्न होता था. अब बिल्कुल भी बॉल टर्न नहीं होता है. तो दैट इज़ वन थिंग कि जहाँ पे आपको फिंगर स्पिनर्स, पर्टिकुलरली लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, फिर भी बच जाते हैं, क्योंकि वो दे कैन यूज़ द एंगल और
वो बच जाते हैं, मगर ऑफ स्पिनर जो है ना बिल्कुल ही मार खा जाता है, क्योंकि वो फिर उस तरह से अगर उसके बाद टर्न नहीं है तो देन हाँ। देयर ही डजंट हैव मच ऑप्शंस टू सर्वाइव. ट्रू ट्रू, ये तो है. आई गेस अब वो हर कोई मिस्ट्री स्पिनर ढूंढ रहा है ऐसा. एंड व्हाट अबाउट अबरार? अबरार इज नॉट अ वाइट बॉल बॉलर. यार उसकी फिटनेस का मसला है. वो आए दिन उसके या तो वो हैमस्ट्रिंग पुल आती है या उसको बुखार हो जाता है. नहीं, असल में उसका डिलेमा भी दूसरा है ना कि अबरार इज़ अ मिस्ट्री स्पिनर, मगर जो टीम कॉम्पोजिशन है ना पाकिस्तान का, हाँ. उसके अंदर यू यू कैन नॉट हैव अ स्पेशलिस्ट स्पिनर इन द टीम, क्योंकि फिर आपका शादाब इज़ अ गो टू प्लेयर राइट. जिसमें जो कि बैटिंग का ऑप्शन देता है, राइट. इफ्तिखार को आप कैरी कर रहे हैं जो कि हिटिंग का ऑप्शन देता है, तो व्हेन यू या हैव दोस टाइप ऑफ ऑप्शन तो आप यू कैन नॉट रियली हैव ए स्पेशलिस्ट स्पिनर. अगर स्पिनर. आप स्पेशलिस्ट की तरफ जाते हो तो देन आपको बैटिंग जो ऑलरेडी फ्रेजाइल है उस फिर आप एक या बैट्समैन और कम करते हो, तो वो अब उसके लिए या तो यू हैव समबडी हु इज़ वेरी टैक्टिकली स्ट्रॉन्ग के हाँ वो बोले कि नहीं यार कि मैं बैटिंग से नहीं, मैं बॉलिंग या से मैच जीतूंगा, तो आई विल प्रेफर एट स्पेशलिस्ट ओवर आदत तीतर अर्जा पटेल, कि भाई राइट. ठीक है कि मैं एक प्रॉपर जेन्युइन बॉलर से मैच जीतूंगा इंस्टेड ऑफ जो एक बॉलर जो 5 या 6 ओवर मुझे देगा. तो इट्स ऑल अबाउट द टैक्टिक्स. तो वो हमारे यहाँ असल में मसला वो है ना कि हम लोग वी ट्राई टू प्ले सेफ मोर देन एक्चुअली राइट. प्लेइंग ऑन द स्ट्रेंथ. तो वो एक है, मगर अबरार इज़ एन ऑप्शन. और उसकी फिटनेस के इश्यूज हैं, डेफिनेटली हैं, मगर वाइट बॉल में आई डोंट थिंक उसको इतने इश्यूज होने चाहिए. टेस्ट क्रिकेट में क्योंकि वो लंबे लंबे ओवर्स करा चुका है, 40-40 ओवर वो करा जाता है, तो इसलिए उसको इश्यूज हो रहे हैं फिटनेस के. लेकिन वो उसका पीएसएल भी अच्छा गया था. आई मीन मिस्ट्री वाइज देयर वर इंस्टेंसेस वेयर बैट्समैन वर नॉट एबल टू पिक हिम. तो बट वही बात है कि वो फिटनेस पे काम करेगा तो फिर उसकी कोई यूटिलिटी भी होगी, वरना ही जस्ट Is वार्म्स ऑफ द बेंच. fitness a problem in Pakistan cricket overall? ओह या. अबे पूरा वर्ल्ड कप खेल गए ये लोग अनफिट प्लेयर से. 2023 का वर्ल्ड कप, 2024 का वर्ल्ड कप ये लोग अनफिट प्लेयर से खेल खेल के गए हैं. खेल अनफिट प्लेयर्स को लेके गए हैं खेलने के लिए. आई मीन तो and इमाद right. वसीम वाज प्राइम एग्जांपल. यूएसए गेम नहीं खेला वो क्योंकि वो अनफिट था. बट उसको आपने इंडिया का गेम खिला दिया क्योंकि यू नीडेड अ मैच विनर, कोट एंड कोट. बट हिज फिटनेस वाज देयर टू बी सीन. उससे नहीं खेला जा रहा था. अब So वो fitness प्रेशर test भी हो. कुछ नहीं होता. अबे यार ये जब से क्या कहते हैं ये जो रमीज राजा का जो टेन्योर था ना, इसमें फिटनेस स्टैंडर्ड्स को काफ़ी रिलैक्स कर दिया गया था. इट वाज वेरी रिलैक्स इन टर्म्स ऑफ के स्किल सेट्स वर प्रायोरिटाइज्ड ओवर फिटनेस. अब वो फॉर द टाइम बीइंग इट पेड ऑफ. 2021 का वर्ल्ड कप में अच्छे रिजल्ट्स आए. 22 के वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ करके आप वर्ल्ड कप में आ गए. हालांकि 22 के वर्ल्ड कप में भी शाहीन वाज नॉट फिट. शाहीन वाज हाफ फिट. तो लेकिन पॉइंट इज के द स्टैंडर्ड वर सो रिलैक्स कि यू प्लेड विद प्लेयर्स हु वर हाफ फिट. अब जो सीन है अभी भी ऐसा कोई सख्त वो नहीं है. बट क्योंकि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी इतनी डाउन हो गई है कि अब उनकी फिटनेस इश्यूज आर रियली लुक्ड एट विद द मैग्नीफाइंग ग्लास. तो एक तो आप अनफिट हैं और आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. तो फिर वो जो जो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा फिर तो आपके लिए डेडली कॉम्बिनेशन है वो. आई थिंक उसका एक मसला ये भी है ना कि हम लोग जो भी काम करते हैं ना वो उसमें बहुत एक्सट्रीम पे या ओवरबोर्ड हो जाते हैं. जब मिकी आर्दर का टाइम था ना 2017 ऑनवर्ड्स 2016 ऑनवर्ड्स, तो ही वाज वेरी बिग ऑन फिटनेस. तो वो इतना उसने इतना ज़्यादा फिटनेस को पुश किया कि उसकी वजह से ना कुछ प्लेयर्स जो है ना वो टीम में आ ही नहीं सके, बिकॉज दे वर नॉट टू हिज स्टैंडर्ड्स, दे वर नॉट फिट इनफ. सही है. अब वो एक अलग एक्सट्रीम था कि भाई क्या आपने जो प्लेयर जो डिजर्विंग हो सकते थे इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, क्योंकि वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पा रहे थे या वो उस हिसाब से फिट नहीं थे, तो उनको निगलेक्ट कर दिया.
फिर जब रिलैक्सेशन का टाइम आया, अब जब देखा इन्होंने कि भाई कि आपके प्लेयर्स अब लेफ़्ट राइट एंड सेंटर इंजर्ड हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा इनको ज़्यादा पुश नहीं करो, क्योंकि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। बेसिकली इट ऑल केम डाउन टू कि भाई कि हमारे पास बैकअप्स उस तरह से तैयार नहीं है, तो जो जिसकी जैसी फिटनेस है उसको उसी पे खिलाते रहो एज लॉन्ग एज वी आर परफॉर्मिंग। तो वो एक अलग एक्सट्रीम था कि आपने बिल्कुल ही फ्री हैंड दे दिया, अब लोग अपना चिल कर रहे हैं, प्लेयर्स जो है ना एक कंफर्टेबल उसमें आए हुए हैं कि भाई कि चलो बस जैसे चल रहा है चलने दो। अब उसका नुकसान अलग ये हुआ कि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप फिट नहीं होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली नीचे आएगी, राइट। जब आप अपनी फिटनेस को एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या, आप क्लब क्रिकेट में भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाट हैपेंड। ये जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस अचानक से जो हमें डाउन नज़र आ रही है, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि आप जब फिट नहीं है तो आप अपने स्किल्स को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। जब आप अपने स्किल्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, आगे परफॉर्मेंस डाउन है, फिर आप इसी तरह रगड़ा खाएंगे, इसी तरह मार खाएंगे। तो हमारे असल में वो बैलेंस नहीं रहता। हम जब कोई चीज़ पिक करते हैं तो हम बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज आते हैं हमें। आई थिंक उस टाइम पे सबसे बड़ा जो इशू हुआ था वो उमर अकमल का हुआ था। उमर अकमल स्किल वाइज वाज अ वेरी गुड बैट्समैन, बट फिटनेस नहीं थी तो ये बाहर हो गया था वो। अब तो ना स्किल रही ना फिटनेस रही। नहीं, स्किल वाइज ही स्टिल अ गुड बैटर। अभी भी वो ही कैन बी अ गुड बैटर इन ओडीआईस, मगर वही वाली बात है कि बिकॉज ही इज़ इन सर्टन माइंड फ्रेम जहाँ पे कि भाई कि मेरे साथ ज़्यादती हो जाती है हर दफ़ा। ही इज़ नॉट कमिंग आउट ऑफ दैट माइंडसेट के यार कि मैंने अपने आप को पुश करना है, मैंने आपको फिट मेंटेन करना है, फिट करना है टू मेक अ कमबैक। वो कहते हैं नहीं जी, बस मुझे अगर आप स्केल पे खिलाना चाहते हैं तो खिलाएं, अदरवाइज आई एम नॉट गोना गेट फिट। आई मीन आप अब इस तरह भी आप नहीं आ सकते, लाइक आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, यू हैव टू बी फिट। आई मीन देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। तो वो है। अब हर किसी एट द एंड ऑफ द डे यार देखो, प्लेयर्स फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो है ना प्लेयर्स को दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन फिटनेस। कोई आपको पुश नहीं कर सकता, कोई आपको ज़बरदस्ती फिट नहीं कर सकता। अगर आप अपनी खुद फिटनेस ख्याल नहीं रख रहे हैं तो देन दैट्स ऑल ऑन यू। आपको और कोई बाहर से कोई कह नहीं सकता। एंड और उससे फिर आपको प्लेयर्स का सीरियसनेस लेवल पता चल जाता है। अगर एक कोई बंदा सीरियस नहीं है अपनी क्रिकेट को लेके तो देन आप उससे इसी तरह का कैजुअल एटीट्यूड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वही अनफॉर्चुनेटली वो हमें अपने हमारी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे सरफराज खान का आई रिमेम्बर लाइक लास्ट ईयर या इवन 2 years ago, वो जब वो इतने रन मार रहा था डोमेस्टिक में, तो ही वाज बीइंग ओवरलुक्ड फॉर दैट रीजन कि उसकी फिटनेस के इश्यूज, मतलब एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी बीइंग टोल्ड एट द टाइम जो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था। तो उसकी फिटनेस इम्प्रूव हुई है या सेलेक्टर्स या कोचेस के चेंज होने पे उसको थोड़ी लीनियंसी मिली है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ गेम विद इंडिया? So he had two issues. एक तो fitness था. The other was over 145K का bowling. So which used to get exposed in IPL. So IPL, Ricky Ponting really tried to do something with him in Delhi Capitals. कि कुछ कर ले वो. I think maybe a game he might have kept even for some time. तो उसको कुछ करके कर रहे थे, but he was just not adjusting to that pace of the game. जैसे इंडियन क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स हैं, आई डोंट थिंक एन अनफिट प्लेयर कैन एक्चुअली प्ले, बिकॉज माना कि ओके लेट अस सपोज कि वो अनफिट था, दे वुड हैव पिक्ड ध्रुव जुरेल. मतलब वो उनके पास ऑप्शंस हैं, तो ऐसा नहीं है देवर और कोई ऐसा भी नहीं है कि सरफराज का बहुत प्रेशर है, और सरफराज को फिटनेस पे साइड करना इज एन ईजी थिंग टू डू. इट्स नॉट डिफिकल्ट. और ऐसा भी नहीं था कि सरफराज ने इतना खेला कि 200 मारे हुए थे या सेटल्ड प्लेयर है. नहीं, इनफैक्ट ध्रुव जुरेल वाज मोर सेटल्ड देन सरफराज, क्योंकि ही वाज द टॉप कीपर, और एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग पंत नॉट टू बी पंत, कि वो इंजरी से वापस आया है. वो तो भाई पता ही नहीं चला
वो बंदा कब आया, कब टीम में आ गया, वो खेल रहा है, ऐसा लग रहा है बस खेल ही रहा है वो. So I guess I don't think fitness is an issue. I personally don't think कि so to answer your question, I think उसने improve किया. और वो यार वो लगता बल्कि है, मतलब ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर ही उसका वैसा है, बिकॉज इफ यू लुक एट हिज ब्रदर मुशीर, ही इज लीन, वो थोड़ा पतला लगता है, ये थोड़ा है ही, ही इज अ बिट बल्की, थोड़ा स्टॉकी बॉडी है, उसका बॉडी वैसा है. इफ यू लुक एट सचिन, सो सचिन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि सचिन वाज अनफिट, राइट, ही बैटेड फॉर सो लॉन्ग, बट बॉडी वैसा है, मतलब आई थिंक दैट इज हाउ दे ग्रो, एकदम वो बल्की टाइप रहते हैं वो, इवन इफ दे लूज वेट, आई थिंक दैट्स हाउ इट इज. बट एंड ऑफ द डे भाई, मतलब उसने कितना एक दिन जो भी बैटिंग किया सब मिला जुला करके, बैटिंग तो किया, टेस्ट टेस्ट क्रिकेट में एक दिन बैटिंग किया उसने, अदर देन राइट, सो यस इट इज ओके, नहीं बट इट इज बैटिंग हाईली डाउटफुल कि नहीं, क्योंकि द रीजन व्हाई आई वाज आस्किंग, क्योंकि उसके काफी काफी मैंने पढ़े, ट्विटर पे ट्वीट्स पढ़े थे कि जब वो ड्रॉप होता था या जब उसको कंसिडर नहीं किया जाता था, तो बहुत से लोग कहते थे कि इट इज़ अनफेयर एंड वगैरह फलाना. बट आई एम नॉट फुली या अवेयर ऑफ इंडियन डोमेस्टिक क्राइटेरिया एज वेल. फिटनेस से ड्रॉप पृथ्वी शॉ हुआ है ओ या मुंबई उसका तो टीम से. नज़र आता है, उसको तो नज़र आता है, उसका तो वो हैव नज़र आता नो भाई, पृथ्वी शॉ, एंड आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ एंटोuraज दैट गाय हैज, लेकिन जो भी उसके इर्द गिर्द है, वो कोई तो है जो लंबा बदला निकाल रहा है भाई से. कुछ तो उल्टे पुल्टे उसको समझा हम जा कर कुछ है. तो नहीं यार, अनशन करा दिए. नहीं यार, द मुझे तो डाउनफॉल खैर ऑफ उसका, पृथ्वी शॉ इज इंटरेस्टिंग. मुझे उसके रिक्रिएशनल इश्यूज ज़्यादा लग रहे हैं उसके, कि वो यस ज़रा उन सब चीज़ों में यस ज़्यादा है, वो इसलिए यस वजह से उसका डाउनफॉल है. Like यस, यू आर राइट. he is very deep into those recreational things. कूडोज टू ऐसा बीसीसीआई कि उसके बारे में क्लियर स्टोरी कभी भी लीक नहीं हो पाई है, मतलब ये कहीं किसी पेपर में आर्टिकल नहीं है कि विद प्रूफ दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. वो किसी को उसने थप्पड़ मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अनाप शनाप की चीजें ठीक है, थप्पड़ आई बेन मीन स्टोक्स ने भी मारा है लोगों को, बट वो मगर वो बाय प्रोडक्ट है ना उसका. Like when you are into those things, you tend to do these, those are the या acts that you do. तो वो आई मीन, अब मुझे तो खैर, मैं जब भी उसकी, मैंने एक दो दफ़ा आईपीएल में उसकी बैटिंग में शक्ल वकल देखी थी ओवर. यार, वो अजीब अंकल टाइप लगने लगा है हाँ बेचारा. करेक्ट. कसम से. उसके आधे आधे बाल उड़ गए, मूछ भी रखी हुई है उसने, और वो अजीब बल्की टाइप भी हो गया है, तो मैंने कहा यार इसको You क्या know हो गया ये. what? अच्छा, What will really make sense if he does not get picked in IPL? If he does not get an IPL contract, I then mean, something Ricky is wrong. Ponting rates him very highly. हाँ तो Talent पंजाब में चला कमी है जाएगा वो. क्या? Nobody. हाँ, पंजाब maybe. चला Let's see. जाएगा. भाई इस बार तो IPL God knows what is happening. SRH ने कहा कि हम बता तुमको क्या होता है लीडरशिप, हम तो 5 रखेंगे और तुम रख लो 75 करोड़ अपने. It's okay. These are our 5 people. We are sticking with them. So yeah. चलो, खैर, कमिंग बैक टू द सेकंड टेस्ट. I read an article on Craig Info के, India is expecting a slow turner, which was very Yeah. obvious. तो based on those conditions, अगर अनलाइक पाकिस्तान और इंडिया में, आई एम प्रीटी श्योर कि पिचेस उसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरह से एक्सपेक्ट की जा रही हैं. तो प्लेइंग 11 में क्या चेंज आप देख रहे हैं? आई मीन, आई नो यू टॉक्ड अबाउट वाशिंगटन सुंदर, मगर would you make a change based on the conditions, और अगर आप चेंज करोगे तो what changes would you like to see in second test? Rest Bumrah maybe. Because rest him, bring him for the third game. I don't think Bumrah भाई, should be playing बुमराह को अगर 3 games बिठाओगे on तो the trot. डीएसपी साहब तो वैसे ही रन खा रहे हैं बहुत, तो उनका क्या करोगे? नहीं, DSP साहब यार, आ, न- it- यही प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई सीम बॉलर भी नहीं है कि आके डाल ही दे. So they'll have to play with 2 seamers.
Obviously, it's difficult. Uh, I would want to, yeah, it's very difficult. I think bowling में they've added Washington Sundar. Will they take Kuldeep out? I don't know. Should they? Ashwin को अगर injury है तो Washington Sundar will replace him. Otherwise, the only change which I see is Gill playing and Sarfraz sitting out. Yeah, you have to have some, in my opinion, you have to have some balls to do that, in my opinion. Yeah. I don't know how will, because if they drop KL Rahul right now, okay? If they drop KL Rahul, then are you going to give Sarfaraz at least 6 test matches continuously? Or you are dropping KL Rahul for only 2 games and you'll be back, and he'll be back in India is not playing ODI cricket. वो अभी इसके बाद फिर से साउथ अफ्रीका में जाके शायद T20 खेल रहे हैं. उसके बाद टेस्ट मैचेस आर देयर इन ऑस्ट्रेलिया. So KL Rahul, I mean, okay, what is the logical thing to do? If you look at long term, who do you want? Who is your preference in Australia? KL Rahul is your preference in Australia for clear reasons, right? Do you want to give KL Rahul a run of 6 to 8 games? और इसके बाद खत्म तो भाई खत्म. Because if KL Rahul is dropped right now and Sarfraz scores one more 100, then KL Rahul is done, and chances are Sarfraz will be done in Australia with those bouncy tracks. With his technique. Matlab, with his technique, I really wish he succeeds. But again, how I'm not confident. I'm no master of the game, but Sarfraz playing all his life on Indian Ranji Trophy wickets, not successful in IPL. And he has been playing IPL since 2016. तो वो भाई 8 साल से IPL खेल रहा है, उसमें अनसक्सेसफुल रहा है, right? Will he be able to cope up in Australia? I don't think so. So a mature decision is have Sarfraz, groom him still, give KL Rahul the long rope, have him play these 2 test matches, have him play the Australia test series, and then if he does not perform, then that's it. It is absolutely okay to go. So क्योंकि अदरवाइज शॉर्ट टर्म थिंकिंग है. अदरवाइज थिंकिंग ये ऐसी है कि भाई अभी जो बना रहा है प्लीज रन बना के जिता दो. वी आर हंग्री फॉर सक्सेस. आई थिंक, एंड ऐसा नहीं है कि KL राहुल को बैट पकड़ना नहीं आता है. क्या उसकी गलती क्या है कि 50 टेस्ट मैच में 35 की एवरेज है, क्योंकि इंडिया का सारे टॉप बैट्समैन 50-50 की एवरेज लेके बैठ. राइट. So it's not that he's a bad player, लेकिन I support the decision of giving him a long rope and then be done with him. It is okay. Give him a fair chance. क्योंकि उस like Sherry said, right, कि क्या प्रॉब्लम था उसके साथ कि उसको कभी ओपन करा रहे हैं, कभी 3 करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं. अब उसको 6 नंबर दिया है तो 2 फिर, और एक ही टेस्ट मैच हुआ है यार. इट्स ओके. इट्स जस्ट वन टेस्ट मैच. आई फील गिव हिम, क्योंकि सरफराज को मौका मिले ना तो लंबा मौका मिलना चाहिए. गिव हिम लाइक 8-9 टेस्ट मैचेस कि जहाँ पे बोला भाई तू खेल, जैसा तुझको खेलना है तो खेल, नो प्रॉब्लम. सो आई थिंक दे आर लुकिंग एट BJT वेरी सीरियसली, बिकॉज इफ इंडिया गोज टू ऑस्ट्रेलिया एंड विंस, मतलब 3 बार लगातार ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत जाएंगे, तो भाई ये सीधे वो बात ही नहीं करे. भाई इन एनी केस नहीं कर रहा है BCCI किसी से सीधे वो बात, तो वो हो गया तो भाई पक्का 7वें आसमान पे है अपन. नहीं, अरे भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ. अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया और टेस्ट सीरीज जीत गया तो भाई इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान खेलने. अबे वो वैसे भी नहीं आ रहा. वो वैसे भी नहीं आएगा चाहे इंडिया जीते या हारे. बट थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि लाइक एक तरफ तुम कह रहे हो कि राहुल को पूरा चांस मिलना चाहिए बिकॉज ही इज बैटिंग एट नंबर 6, तो और लुकिंग एट के ही इज गोना बी मोर वैल्यूएबल बैटर इन ऑस्ट्रेलिया इन द ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, राइट? मगर ऑन द अदर एंड बिकॉज सरफराज का ओवरसीज का भी इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, उसका ज़्यादातर एक्सपोजर होम कंडीशंस का है.
एंड यू थिंक कि वो ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल कर सकता है विद हिज करंट टेक्निक? हाँ। एक तो ये कि उसकी टेक्निक तुम्हारे अंदाजे में उसकी क्या इश्यूज हैं टेक्निकली जो उसको स्ट्रगल कर सकता है ऑस्ट्रेलिया में, नंबर वन। नंबर टू ये कि अगर वो अभी रन्स कर रहा है एंड यू वांट हिम टू गेट एन एक्सटेंडेड रन, हाँ। तो उसको उन चैलेंजिंग कंडीशंस में क्या नहीं खेलना चाहिए जस्ट टू गेट टेस्टेड आउट के यार के देर इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड आउटसाइड इंडिया कि जहाँ पर आपको यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो जब आप उसको वो वाला एक्सपोजर ऑस्ट्रेलिया में जब नहीं देंगे खेलने का, तो देन हाउ हाउ कैन ही इम्प्रूव? क्योंकि वो तो फिर उसके बाद दोबारा रणजी जाके ही खेलेगा अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहा। तो he's gonna be stuck in that home condition for you know for a long time. ओके ओके, तो इट्स अ टू पार्ट क्वेश्चन। पहला तो हो गया टेक्निकल फ्लॉ, ठीक है। तो वो और शुभमन गिल, दे बोथ प्ले बिसाइड्स द लाइन ऑफ द बॉल। मतलब वो सामने नहीं आते, वो साइड में रह करके खेलते हैं, राइट। उसका ऑफ साइड का गेम इसीलिए वैसा है, या वट एवर स्कूप शॉट करता है, ये करता है, वो करता है, ऑल दोज थिंग्स। ही डज नॉट लुक प्रिटी टू द आइज, बस मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो दैट इज पॉसिबली अ रीजन कि ही इज नॉट दैट टेक्निकली करेक्ट in Australia when there is bounce. Apart from शुभमन गिल, आई एम नॉट श्योर कि ऐसे कौन से सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन है जो बिसाइड्स द लाइन ऑफ द बॉल खेलते हैं एंड हैव बीन सक्सेसफुल, नॉट अ लॉट। सो हिज टेक्निक ऑन बाउंस बाउंस, और ऊपर से यार मेन चीज क्या है कि उसका ना आईपीएल में नहीं उसने मास्टर किया हुआ। इमेजिन एवरी अदर बैट्समैन अराउंड, सबने आईपीएल में पकड़ पकड़ के मारा है। एवरीवन हैज अ 30 बॉल 75, एवरीवन। ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, ईशान किशन, आई मीन आई कैन कीप ऑन गोइंग, राइट। बेंच की कमी तो नहीं है। सो देयर इज अ रीजन व्हाई ही हैज फेल्ड। और ऐसा नहीं है कि वह 100 तो होता, 100 या 180 तो होता 40 बॉल में, 8 साल में नहीं है। तुम उसने लॉन्ग फॉर्मेट में ही हैज फाउंड वेज टू सर्वाइव। आई वांट, ओके, सो द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इज कि केएल राहुल को खिलाओ, उसको नहीं खिलाओ, बिकॉज केएल राहुल विल प्ले दैट फर्स्ट टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया, बी श्योर ऑफ इट। तो इट इज ऑल अबाउट गिविंग सरफराज 2 गेम्स। वो 2 गेम उसको नहीं, और गेस व्हाट, चलो श्रेयस अय्यर को इंट्रोड्यूस कर दो मिक्स में। अब किसको खिलाओगे आप? तो इंडिया हैज अ डिफरेंट यूनिक प्रॉब्लम। आई थिंक इंडिया कैन अफोर्ड, फाइनली हम उस जगह पे हैं जहाँ पे वी कैन अफोर्ड टू मेक लॉन्ग टर्म डिसीजंस कि हमको किस प्लेयर को सक्सीड करते देखना है। तो आई थिंक दे आर गोइंग टू स्टिक विद केएल राहुल। दे शुड, इन माय ओपिनियन। नाउ कमिंग बैक टू शरीस क्वेश्चन कि यार उसको भी तो सरफराज कैसे ग्रो करेगा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम यह है कि क्रिकेट ऐसा, मतलब इट्स अ पर्सनल गेम मास्ड एज अ टीम स्पोर्ट, जहाँ पे कि ये सरफराज के लिए बेस्ट क्या है कि वो टफ कंडीशंस में खेले। एब्सोल्युटली, दैट इज हाउ ही विल ग्रो। बट विल द टीम ग्रो विद दैट? इज दैट द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द टीम कि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी तो वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पे स्वीप पे स्वीप मार दी उसने। आई वुड लव टू सी हिम हाउ डज ही हैंडल अ नेथन लायन। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि सरफराज खान जाएगा, वो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन, इन सबको वो, जिनको इसने नहीं खेला टेस्ट मैचेस में, वहां पे जाकर के पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम सक्सीडिंग वर्सेस अ केएल राहुल जो 50 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, ऑस्ट्रेलिया में 100 मार चुका है। हु वुड यू वांट टू बैंक, राइट? तो ये सरफराज के लिए अनफेयर है, बिल्कुल अनफेयर है, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। मतलब संजू सैमसन को तो ये रेड बॉल में आसपास भी नहीं भटकने देते, राइट? तो इट्स नॉट दैट देयर आर बेटर प्लेयर्स, मे बी, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हो, राइट, तो लॉन्ग टर्म में आपको उसको बैंक करना है जो आपको लगता है कि कर देगा। आई थिंक द टीम इज बैकिंग केएल राहुल। दे आर, और फॉर सम रीजन केएल
Rahul is in Team India's blue-eyed boy for some reason. मतलब उसको T20 से तब तक ड्रॉप नहीं किया जब तक कोई और ऑप्शन ही नहीं था ड्रॉप करने के सिवा. Right. So I guess in test matches he will be given a run. And honestly, I feel अगर सरफराज को खिलाना है तो भाई सरफराज को अब अगर केएल ड्रॉप हुआ, सरफराज आया है, then give him 8 test matches. Then you live with that decision. But will you? नहीं पता. अभी श्रेयस अय्यर ने डबल ट्रिपल 100 मार दिया रणजी ट्रॉफी में, ऐसा वैसा हो गया, थिंग्स चेंज. फिर क्या होगा? राइट. सो सरफराज खान विल हैव टू, अकॉर्डिंग टू मी, उसको बिठाओ, वेट कराओ, नो प्रॉब्लम वेट कराने में. और पता नहीं कितने लोग इंजर्ड हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, किस किस को मौका मिल जाता है, पिछली बार क्या हुआ. सो दैट इज व्हाट आई फील कि फॉर सरफराज, यस, इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग. ठीक है, सक्स टू बी सरफराज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. क्या कर, राइट. बट I think they're banking on KL Rahul. They feel KL Rahul is much more technically sound than Sarfraz. Sarfraz is far more confident than KL Rahul. ये फर्क है. इसलिए सरफराज रन बना रहा है, केएल नहीं मार रहा. तो केएल के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है 6 नंबर पे. प्लस केएल गिव्स यू विकेट कीपिंग ऑप्शन इफ समथिंग हैपेंस और समथिंग इधर उधर हो जाता है, दे आर नॉट एबल टू कैरी ध्रुव जुरेल विद देम. तो वो आपको विकेट कीपिंग ऑप्शन भी देता है. And I think KL might be a better fielder than Sarfaraz. Not sure, but looking at मतलब उनकी कद काठी देख के दोनों की तो यही लगता है कि KL might be a better fielder than Sarfaraz. So बना सकते हैं केस, but yes, it's a happy situation for Team India कि ये हो रहा है. अरे वो छोड़ो यार, अक्षर पटेल को नहीं मौका मिल पा रहा जडेजा की वजह से. Yeah. So प्लेयर की कमी नहीं है, बट यस सरफराज भाई पता नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट वन थिंग टू हैपन, क्योंकि सरफराज अगर ड्रॉप हुआ तो भाई सरफराज के रिप्लेसमेंट बहुत हैं इंडिया के पास. तो फिर सरफराज और क्या करेगा? उसका 70 का एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ना. इफ ही गोज बैक, उसने 2 गेम खेले या जो भी था, या इट विल बी अ बैड टाइम फॉर हिम टू गेट ड्रॉप. सो आई वुड से सेव सरफराज, पुट केएल राहुल इन फायर. और भाई ठीक है, इतने बड़े प्लेयर हो तुम, इंडिया के टॉप 5 प्लेयर्स में आते हो, जस्ट गो डू समथिंग फॉर द नेशन. और ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद डन ऐसा. क्योंकि कैन यू इमेजिन सरफराज फेसिंग इंग्लिश बॉलर्स इन इंग्लिश कंडीशंस विद दिस टेक्निक? तो क्वेश्चन मार्क भाई के लिए बहुत सारे हैं. और ये प्रॉब्लम ये होता है, आईपीएल में तो सभी मारते हैं यार, आईपीएल में वो कैसे नहीं सक्सीड कर पा रहा? राइट, दैट्स द पॉइंट. Why is IPL not clicking for him? There is something he's not able to figure out with bouncier tracks, quicker tracks. I think that's what it is. तो भाई पुणे में आपको बड़े बड़े पंखे नजर आएंगे उसके लिए पुणे में भाई स्पेलिंग? वो सब लगा दिए, खाली फोटो रह रही है पंखों की. मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने तो 2 लगाए थे, ये 3-4 लगाएंगे. ये स्क्वायर वेयर से रोहित शर्मा कहेगा भाई बहुत हो गया स्पोर्टिंग ट्रैक, अब गड्ढे बनाएंगे, अब ये गड्ढे में खेलेंगे. पाकिस्तान ने तो वो भी लगाए हुए हैं यार, क्या कहते हैं, हीटर, एरिया हीटर्स. एरिया हीटर तो साइडों में लगाए हुए और पंखा, ज़रा वो पंखा वो गर्म हवा सक करता है और गर्म हवा फेंक रहे oh हो उसमें. man, तो I just hope Pakistan wins this test match. और उसके बाद तो फिर मजा आएगा. बाबर आजम का क्या करेंगे ये? भाई बाबर आजम पे तो अभी बुरी छाई हुई है. अब तो रमीज राजा ने बोल दिया कि भाई Oh ट्रैक्स yes, जो वो जो फ्लैट फट्टे ट्रैक्स वगैरह उसने जो बना, मांगे थे. फ्लैट ट्रैक जो मंगवाए थे वो बाबर आजम ने बोले. तो खैर इसी पे बात करते हैं थोड़ी सी कि क्योंकि हम लोग को फर्स्ट टेस्ट, सॉरी सेकंड टेस्ट से पहले तो हमें ना स्पिनर्स मिल रहे थे. हमारे अब स्पिनर्स ही मिल गए जो 20 विकेट भी ले रहे हैं. मतलब एक ऐसा चेंज आया कि अब सबकी उम्मीदें भी जाग गई हैं भाई कि हमारे बैटर रन भी कर रहे हैं. शान मसूद ने 150 मार दिए थे सीरीज के स्टार्टर में. अब आई थिंक जो इशू जो आएगा ना, अब क्योंकि इंग्लैंड ने अभी अपनी टीम अनाउंस की है, उसमें 3 स्पिनर हैं, रेहान अहमद, शोएब बशीर और जैक लीच. अब इन 2 को तो सही से नहीं खेल पा रहे. आर्ग्यूबली योर बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन सऊद शकील हैज स्ट्रगल्ड. अब 3 स्पिनर लगेंगे. अब तो उन्होंने, आई थिंक गस एटकिंसन खेल रहा है एंड बेन स्टोक्स इज योर सेकंड सीमर.
वो आई थिंक 3-4 ओवर की स्पेल कराएगा मैक्सिमम। बट द पॉइंट इज कि आपने आप तो खिला लेंगे स्पिनर और वो भी शायद स्ट्रगल करें, बट आप क्या करेंगे स्पिनर्स के साथ यार? वो देखने आया मेरे लिए, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम साउथ शकील दैट्स nobody else is a accomplished player of spin. Rizwan is a walking wicket against spin. भाई रेहान अहमद को जो ऐड किया है ना, वो डेब्यू में 5 पर ले चुका है पाकिस्तान के पाकिस्तान के अगेंस्ट। खिलाफ। ठीक है ना, तो हमारा असल में मसला वही है ना कि लाइक एवरीबडी इज सो ऑब्सेस्ड विद कि यार देखें आकिब जावेद का विजन काम कर गया जी, उन्होंने कहा कि आपका विनिंग फॉर्मूला क्या है कि आप पिच को रगड़ें और स्पिनर लगा दें। नॉट टू मेंशन के जो मुल्तान का जो पिच था ना, वो यूज्ड पिच था। वो पहला टेस्ट आप उस पर खेल के जलील हो चुके थे, उसके बाद आपने दूसरा टेस्ट खेला तो आप जीते, राइट। पिंडी की फ्रेश पिच आ रही है, उस पर आपने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला हुआ, और जिस पिच पे आपने टेस्ट मैच खेला था वो सपोजिटली पेसर फ्रेंडली पिच आपने बनाई थी, जो जो उसने आपके पेसर्स के लिए बिहेव नहीं किया मगर बांग्लादेशी पेसर्स के लिए उसने किया, ठीक है ना। तो उसको आपके पेसर से मसला था पिच को, मगर उनके पेसर से मसला नहीं था। अब आपने वहाँ पे जो है ना बड़े बड़े पंखे लगा के आप समझ रहे हैं कि जी हम ड्राई पिच लगा देंगे, और और इंग्लैंड वालों ने भी यही रीड किया है कि भाई कि ये सूखा पिच होगा, स्पिन मिलेगा, सब कुछ है। इसका मतलब है कि आपकी भी जो है वो प्लेइंग 11 चेंज नहीं होने वाली। मसला ये है कि उन्होंने टॉस जीत के, अगर वो टॉस जीत गए और उन्होंने बैटिंग कर ली और उन्होंने आपको धो दिया पहले इनिंग्स में, तो आपने वहाँ से कैसे कम बैक करना है? क्योंकि वही वाली तुम्हारी वाली बात कि भाई आपने तो स्पिन, आपको तो स्पिन खेलने में भी मसला है। अभी जो पिछला टेस्ट मैच हुआ है उसके अंदर आपके 4 बैटर्स हैं जो बहुत ही लो स्कोर पे आउट हुए हैं। अगर आप कामरान गुलाम की सेंचुरी हटा दें और साइम के रन हटा दें, 2 बैटर्स ने तकरीबन कोई 200 रन किए हैं। उसके अलावा बाकी नीचे से कंट्रीब्यूशन आई है, सलमान अली आगा की आई है, आ, आमिर जमाल की आई है, और नुमान ने थोड़े बहुत रन किए थे, 30-35 रन किए थे। तो रिजवान, साउथ शकील, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, ये 4 आपके मेन बैटर जो है वो स्पिनर के अगेंस्ट, 2 स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। जब 3 स्पिनर के सामने आएंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे वो क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये वाली पिच आप जितनी मर्जी ट्राई कर लें, ये उस तरह से पिच बिहेव नहीं करेगी, क्योंकि ये यूज्ड पिच उस तरह की नहीं है। हाँ, ये वाली पिच जो है ना, तीसरे दिन के बाद से आपको लगेगा, तीसरे चौथे दिन के बाद से लगेगा कि हाँ ये थोड़ा बहुत कुछ कर रही है, या ये आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, मगर मुझे नहीं लगता ही कि ये पहले दिन से ये जो है ना स्क्वायर टर्नर होगा, या ये उस तरह से बिहेव करेगा। तो टॉस बहुत क्रूशल होगा, और अगर इंग्लैंड ने जीत लिया इस पिच पर टॉस तो आपको बहुत फैंटी लगेगी, क्योंकि आप तो उनके पास तो फिर 2 पेसर खेल रहे हैं, आपने तो आपके पास तो दूसरा पेसर ही कोई नहीं है, और आप जिस पेसर को आप खिला रहे हैं उससे आपने पिछले टेस्ट मैच में सिर्फ 6 ओवर कराए हुए हैं पूरे टेस्ट मैच में। तो इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं। होपफुली जो ये लोग प्लान करना चाह रहे हैं कि भाई कि वो पिच इनको उस तरह से असिस्टेंस दे तो हमारे बॉलर्स कुछ कर लें, तो वी कैन ओनली होप फॉर दैट। अदरवाइज अगर पिच ने बिहेव उस तरह से नहीं किया तो इट विल बी अनदर मुल्तान शो। नहीं, से पिंडी की पिच जो है वो हिस्टोरिकली कभी भी टर्न नहीं करती है। वी सीन, मतलब जब पिंडी की पिच स्पोर्टिंग पिच होती थी तो आई थिंक लास्ट आई बिलीव श्रीलंकन सीरीज व्हेन मिसबा वाज कोच, मिसबा प्लेड 4 सीमर्स ऑन दैट विकेट। फिर जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो बिल्कुल ही तो आपने घास हटा दिया था, बिल्कुल फ्लैट कर दिया था। उस टेस्ट मैच में भी आपने 2 स्पिनर खिलाए थे, 3 सीमर खिलाए थे, क्योंकि पिंडी historically is a pitch where seamers find more assistance. तो देखना ये होगा कि अब अलग अपने पंखे चला तो होती हैं, लेकिन how effective is this strategy is what remains to be seen. क्योंकि ग्राउंड डायनामिक्स भी थोड़ी चेंज है, छोटा ग्राउंड है, आउटफील्ड काफ़ी फास्ट होती है, तो runs will be there for the taking.
आई थिंक बेन स्टोक्स ने भी ये बात की थी कि लास्ट मुल्तान टेस्ट वाज द टॉस मैटर्ड इन दैट गेम. अगर आप टॉस जीत गए तो फिर यू नो बिस्मिल्लाह करें, अपना अपना स्लॉट खोलें जाके आप. बट एक चीज़ मुझे भी ये भी है कि एज अर्शद पॉइंटेड आउट, ये अगर जीत जाता पाकिस्तान और अगर कामरान गुलाम की फिर एक सेंचुरी आ जाती है तो वेट इज बाबर आजम को एट दैट पॉइंट. अभी वो देखो, वो इतना बड़ा आई डोंट सी दैट मच ऑफ एन इशू, क्योंकि बात ये है कि ये जो हमारे जो लोग हैं ना, इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है. सही है ना. अभी हमने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जाना है इसके बाद, ठीक है ना. वहाँ जाके सबके 14 तबाक रोशन हो जाएंगे. सही है. ये सारी सेंचुरी और मुल्तान टेस्ट और सीरीज वीरीज हैं, ये सब जाएगी तेल लेने. सही है. फिर सब आ जाएंगे कि जी के अच्छा ये तो इसकी ये टेक्निकल मसला है, वो जी ये तो ये पर्ची है, तो ये है, तो वो है, उसको लेकर आओ, उसको बाहर बिठाओ. ये सब शुरू हो जाएगा उसके बाद. तो वो उतना मसला नहीं है. इशू ये आएगा कि आपने अब सबने 2-3 प्लेयर्स को अब्बू बनाया हुआ है अभी ना, कि जी हमें परमानेंट रिप्लेसमेंट मिल गया है, ओ जी ही इज़ अ बेटर बैट्समैन और वगैरह वगैरह. अब आपने कामरान गुलाम को इतना चढ़ाना शुरू कर दिया है, इतना चढ़ाना शुरू कर दिया है कि जिस दिन उसका बैट से रन नहीं आएंगे ना, तो आपने ऑलरेडी यू आर सेटिंग अप फॉर अ फेरियल. क्योंकि वो अभी वो रन कर रहा है, करेगा थोड़े बहुत करेगा, कुछ इनिंग्स अच्छी खेलेगा. उसके बाद जब उसका शुरू होगा, जब उसको सही मानों में इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर आएगा उसके ऊपर, जब वो स्ट्रगल करना शुरू करेगा ना, तब यही लोग उसकी बैंड बजा रहे होंगे. तब वो भूल जाएंगे कि जी ये वही बंदा है जिसने डेब्यू पे सेंचुरी की थी, ये वही बंदा है जिसकी वजह से हम मुल्तान टेस्ट जीते थे, ये हम ये सीरीज जीत जाएंगे. वो सब गया. अभी इस WTC साइकिल में आप 3 टेस्ट मैचेस जीते. सही है. 2 बाबर के अंडर जीते हैं ना, श्रीलंका में जाके अवे में. किसी को याद है? किसी को कुछ याद नहीं है. अब वो बाहर हो चुका है. अब ये ना वो पुराना किस्सा हो गए. हाँ फिर ठीक है कि ही इज़ डन, डाउनफॉल हो गया, ओ जी उसने अपना टैलेंट वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. भाई वो 30 साल का हुआ है अभी. अगर वो अपने अभी अगले 2 साल भी अगर वो बाहर बैठा रहे ना, तो ही विल बी स्टिल बी एबल टू मेक अ कमबैक. ठीक है. और जितनी अनसर्टेनिटी हमारी क्रिकेट में है ना, आपको उसका कमबैक बहुत जल्दी भी होता नजर आएगा. अभी तो मंजन बेच रहे हैं कि जी कि हमने उसको रेस्ट देने के लिए बाहर बिठाया है. ये मीडिया पे बातें बस करने के लिए बातें की हुई हैं. एक्चुअली उसको ड्रॉप किया उन्होंने, विच इज़ फाइन. आई मीन आपने 18 इनिंग्स खेल ली थी, यू कुड नॉट स्कोर, दैट्स फाइन. आपको ड्रॉ, आप कोई स्पेशल नहीं हो. आप अगले अगले को तो कारान गुलाम को तो 18 इनिंग्स भी नहीं मिलेगी. फवाद आलम को नहीं मिली ना 18 इनिंग्स. पहली बार हो गया वो. आपको तो फिर भी 18 इनिंग्स मिल गई थी. तो ये साइकिल है. आप जब वही वाली बात है, जब आप अपने गेम को रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना, तो गेम आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा. आपने आपने अगर एक कदम आगे रहना है, तो यू हैव टू वर्क हार्डर. आप अगर आप नहीं करेंगे, एवरी क्रिकेटर गोज थ्रू द सिमिलर फेस कि भाई वो जो है ना, वो एक पीक पे जाता है, उसके बाद एक डिप आता है. अब उस डिप से वो कैसे बाहर निकलता है, वो उस प्लेयर पर डिपेंड करता है. और वो फिर आपको डिटर्मिन करता है कि भाई कि आप ग्रेट प्लेयर हो या मीडियोकर प्लेयर हो. और वो उस फेज में है. अगर वो इस फेज से बाहर आ जाता है, जैसे मैंने कहा कि वो 30 साल का है, वो अभी उसके पास अगर वो चाहे तो वो अनदर डेकेड वो खेल सकता है. मगर अगर वो इधर उधर की एक्सक्यूजेस में अगर लगा रहा, तो देन दैट्स अप टू हिम. ये मैं एक चीज़ ये भी चाह रहा था कि आप अब्दुल्ला शफीक को भी आप रेस्ट दे दें, क्योंकि आप फुरेरा को आप बेंच करा रहे हैं. भाई अब वो अब्दुल्ला शफीक ऐसा क्या कर रहे हैं जिनको रेस्ट चाहिए? मतलब आप फुरेरा को ट्राई कर लो. वो रन्स कर नहीं रहा है, तो आप फुरेरा को आप 2-3 सीरीज से, श्रीलंका सीरीज से आप लेके चल रहे हो ना. भाई देखो वो ठीक है, आप उसको चांस दें, बट बात ये है कि अब्दुल्ला शफीक ऐसा कर क्या रहे हैं जिनको रेस्ट चाहिए? वो हर वो श्रीलंका में उसकी 200 थी. ठीक है, एक इनिंग में. उसके बाद उसने टेस्ट मैचेस में क्या किया हुआ है?
अभी एक सेंचुरी आई है मुल्तान में, उसके बाद तो उससे पहले तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक एक ऑस्ट्रेलिया में उसका 150 आई 70, थी ऑस्ट्रेलिया में। 150 थी कुछ। कहने का मतलब ये है कि वो उसका ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है। वो एक एक इनिंग्स खेलता है अच्छी, फिर 3-4 इनिंग्स में फ्लॉप होता है, फिर एक इनिंग खेलता है। उसके टेक्निकल इश्यूज हैं, उसको उसको रेस्ट की नहीं, उसको अपनी टेक्निक पे काम करने की ज़रूरत है। वो उसके टेक्निकल इश्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और वो जब तक उसको एड्रेस नहीं करेगा, वो इसी तरह उसका अप एंड डाउन आता रहेगा। तो अगर तो आप उसको एक क्लियर प्लान के साथ उसको बिठाते हैं बाहर के, जी कि आप इन इश्यूज पे काम करें, और फिर देन यू वॉक इनटू द टीम, देन दैट्स फाइन। मगर अगर आप उसको अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप उसको 2 टेस्ट मैचेस का गैप दे देंगे तो वो तीसरे टेस्ट मैच में आके कोई कमाल कर लेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो क्लियरली स्ट्रगल कर रहा है अपनी टेक्निक की वजह से। उसका पाँव कहीं होता है, बैट कहीं होता है, उसको अंदर आने वाला बॉल तंग कर रहा है। ठीक है, वो अब वो अपनी उस बॉल को, फोर्थ फिफ्थ स्टंप की बॉल को वो नहीं एडजस्ट कर पा रहा है। वो उसको खेलने के लिए जाता है, जो जो बॉल उसको स्टंप पर आ रहा है, वो उसी वजह से वो एलबीडब्ल्यू भी हो रहा है, वो बोल्ड भी हो रहा है। ठीक है, वो अगर उसको नेविगेट करना चाहता है तो फिर उसको बाहर का बॉल तंग करता है। तो उसके टेक्निकल इश्यूज हैं, वो जब तक उस पर काम नहीं करेगा, आप रेस्ट इज़ नॉट दी ऑप्शन। या तो आप उसको भेजें कि हाँ यार जाके तुम इस पे काम करो, एंड देन यू मेक अ कम बैक, और नहीं तो आप उसको ऑन द गो उस पे काम करते रहो, इवेंचुअली यू विल गेट बेटर। ये अभी किसी ने शेयर किया था कि शुभमन गिल एंड अब्दुल्ला शफीक, they're almost the same age. They've played almost the same amount of test matches. They average very similar to each other. दोनों की 5 सेंचुरीज हैं. किसी ने बोला था कि अब I don't know where शुभमन गिल stands at this moment in Indian cricket, बट किसी ने बोला था कि किसी ने ट्वीट मारी थी कि हम अपने प्लेयर्स को जलील करते हैं, वहाँ पे शुभमन गिल को उन्होंने सर पे चढ़ाया हुआ है और ये किया हुआ है. So Arjit, I wanted to ask you कि शुभमन गिल, we all know the potential he has. Where is he now? और is it true कि उनको वाकई में सर पे चढ़ाया हुआ है in India? यार ओडीआईज में तो यस, आई थिंक ही मेरिट्स हिज प्लेस. T20 में आई थिंक it's difficult for him to make a comeback. I think hard hitters are present. Test matches में I think he has been given a rope. I think for any subcontinent batsman, average of less than 40 should be unacceptable. क्योंकि आप ऐसे कंडीशंस में खेलते हो जहाँ पे कि 100 जाते हैं, ये सब आते हैं, राइट? ऑल द ग्रेट्स, यू पिक एनी. मुझे तो दिखता ही नहीं है कि कोई 55 टेस्ट खेला हो और 35 के एवरेज हो, केएल राहुल छोड़ के. मतलब मुझे तो ऐसा लगने लग गया, ऐसा ना हो कि बाय द टाइम केएल राहुल फिनिशेस हिज टेस्ट करियर, जडेजा की उससे बेटर एवरेज हो जाए. ऐसा बिल्कुल हो सकता है. सो केएल राहुल इज, या सर पे तो नहीं चढ़ा है, बट हिज पीआर इज सेम एज विराट कोहली, FYI. ही इज मैनेज्ड बाय द सेम कंपनी. तो केएल राहुल क्या कहते हैं, विराट कोहली को किंग कहते हैं, इसको प्रिंस कहते हैं. दैट्स हिज ब्रांडिंग, दैट्स अ ब्रांडिंग बीइंग डन. आई थिंक ओडीआई में देयर इज नो क्वेश्चन ओवर हिज प्लेस इन द टीम. टेस्ट मैचेस में unfortunately for some reason, um I think there is no immediate replacement for number 3 batsman. So वो थोड़ा सिक्योर्ड तो है भाई, एंड ही इज गोइंग टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया. अरे यार ऑस्ट्रेलिया में उसने 94 मार दिया चेस करते हुए गैबर टेस्ट मैच. सो आई थिंक ही विल बी बैक. दे हैव रियलाइज्ड ही हैज पोटेंशियल एंड द टीम इज विनिंग. प्रॉब्लम आते हैं ना, द डिफरेंस इज पाकिस्तान इज नॉट विनिंग. पाकिस्तान जीतता रहता ना तो अब्दुल्ला शफीक को कहते हैं कि भाई बहुत पोटेंशियल है, लेट्स कैरी हिम. वो फूटेगा 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 कभी, यू वेट, यू कैन वेट. जब आप हारते हो आप डेस्परेशन में चले जाते हो कि कभी तो जीतना पड़ेगा ना, यू हैव टू विन. कुछ नहीं, लेट, अगर ये इंडिया 3-0 टेस्ट सीरीज हार जाए, ठीक है, और कोहली के रन ना हो, ठीक है, जितना बड़ा भी प्लेयर हो, इट विल बी लाइक कि ओ इज इट द एंड ऑफ कोहली. बिल्कुल हो जाएगा, राइट? कि भाई वैसे रन नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे. तो इंडिया में ही इज सर्वाइविंग बिकॉज इंडिया इज विनिंग.
I think winning is the main difference. So if you are, because if you are not winning, then you'll feel like कि भाई किसको हटा सकते हो, क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो. You are forced to make changes, and when you're looking to make changes, you look for reasons to make those changes. तो फिर तो, और क्रिकेट ऐसा गेम है भाई, कोई भी बैट्समैन उठा लो उसकी 4 कमियां दिख जाएंगी. एंड डेटा इज सच अ थिंग दैट यू कैन रिप्रेजेंट वट एवर यू वांट टू रिप्रेजेंट. मतलब यू कैन क्रिएट अ केस फॉर योरसेल्फ कि एवरेज अगर पिछले 8 इनिंग में अच्छी आ रही है तो पिछले 5 उठा लो, 5 में बेकार है तो पिछले 8 उठा लो. राइट, यू कैन ऑलवेज डू दैट. बट the question which was asked to me, उसका यार मेन चीज क्या है, I think पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बोलते हैं अपने प्लेयर्स को लेकर के, there is no doubt. As somebody from outside who looks at the cricket and looks at the commentary and क्या बोलते हैं, Pakistan is a team which has a serious history, right, in cricket. You cannot say कि नहीं है. अब I think उनके प्लेयर्स को सपोर्ट तो नहीं मिलता भाई, दैट इज, आई एम क्लियर, अनडाइंग सपोर्ट तो मिल नहीं रहा. डिफरेंस कहाँ आ गया है कि उन्होंने अपने सिस्टम्स नहीं चेंज करे, जिसकी वजह से अब वो हर्ट होते जा रहा है. कि हाउ कैन इट हैपन कि यू आर इन ईयर 2024 and you have to relax your fitness levels to accommodate players, and guess what, those players delivered and you won. So that means कि quality नहीं है. Sorry to say, that means you don't have a 27-year-old left arm spinner and a 27-year-old right arm off break bowler who can bat a bit, जिसको आप import कर लो domestic cricket से test cricket में, और आप कहोगे ठीक है यार, we'll give you 2 matches, don't go ahead and do it. But नहीं, you had to go for people who have experience. So I think ये state of country की वजह से अब्दुल्ला शफीक की बैंड बज रही है. ये है. And opener भाई, okay, so I remember if you look at all the New Zealand batsmen, all the Australia शायद नहीं, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के बैट्समैन उठा के देख लो, किसकी एवरेज 55 रहती थी. हाशिम आमला होगा, पता नहीं एबी डिविलियर्स की 50 से ऊपर है कि नहीं है, आई डोंट नो. राइट, सो अब्दुल्ला शफीक, if you have 5 centuries, if your numbers are same as Shubman Gill, I think you're okay. Shubman Gill is underperforming though. मतलब if you are batting at number 3 for India और तुम्हारा एवरेज 45 नहीं है, तो भाई यू आर लकी टू बी देयर. मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद इंडियन क्रिकेट की वह कुछ तो ऐसा है जो तुम्हें देख रहे हैं और तुमको सपोर्ट मिल रहा है वो. अब प्लस जस्ट टू काउंटर माय ओन पॉइंट, एक आईपीएल फ्रेंचाइजी का कैप्टन है वो. या टाइटंस का, या गुजरात टाइटंस का कैप्टन है, राइट. सो एटलीस्ट ही वाज गिवन द कैप्टनसी. सो और अभी उसको इंडिया में वाइस कैप्टन भी बना दिया था, तो आई गेस दैट ट्वीट वाज राइट. ही वाज वाइस कैप्टन इन द प्रीवियस T20 आए नहीं, इन प्रीवियस ओडीआई सीरीज जो भी इंडिया ने खेला है श्रीलंका में, आई गेस जो हार गए थे, उसमें ही वाज वाइस कैप्टन. सो दैट वाज देयर. टेस्ट मैचेस में डिड नॉट अनाउंस, लेकिन 2 सीरीज में ही वाज डिक्लेयर्ड वाइस कैप्टन फॉर 2 सीरीज. सो आई थिंक एक T20 सीरीज थी जो इन्होंने जिम्बाब्वे में खेला था, और दूसरा वाज ये क्या कहते हैं जो ओडीआई था, नहीं शायद श्रीलंका में, शायद दोनों का उन्होंने ऐसा किया था. ये चीज है. तो यस, आई गेस state of the country and the not the country, the state of the cricket team itself is a reflection कि आप कितना टांग के रख सकते हो अपने साथ. ये है. But time is running out for Shubman Gill, not immediately, but 10 or test match, because what they don't want to do is have another KL Rahul. I think that is what they've realized कि KL Rahul को ऊपर खिलाओ, नीचे खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ. तो अब वो कह रहे हैं शुभमन गिल गो बैट नंबर 3, KL Rahul go bat number 6, and your goal is to win Border Gavaskar Trophy. Yeah, maybe till whatever, till WTC अगर पहुंच जाते हैं ये लोग फाइनल में, तो जिसके चांसेस आर हाई. आई थिंक दे हैव टू विन, दे हैड टू विन 5 out of 10. They're still top. I think अभी भी टॉप पे ही है.
बिकॉज रोहित शर्मा ने अपना ओवर रेट बचा लिया है तो इनको पॉइंट डिडक्शंस कम हुए हैं. Australia and India are same plate, same number of points. The difference is points deducted. उनके शायद 8 डिडक्ट हो चुके हैं, इंडिया के 2 ही डिडक्ट हुए हैं, ऐसा कुछ. So that is how it is. And India versus Australia is I think what everyone is eyeing on. Yeah. तो वो देखते हैं. तो क्या प्रेडिक्शंस है पाकिस्तान इंग्लैंड की? क्या do you foresee Pakistan winning the series and hopefully Shan Masood can say कि यार मैंने अपनी करियर में होम सीरीज जीती है आफ्टर 2021? नहीं, जितनी मेहनत हो रही है ना पिच पे, तो उस हिसाब से तो जीतना चाहिए. बड़े बड़े पंखे लग गए हैं और सुखाया जा रहा है और सारी चीज़ें हैं, तो बट वही वाली बात है कि इट विल डिपेंड ऑन द टॉस. क्या टॉस कौन जीतता है और किस तरह से आप अपना गेम प्लान करते हैं. क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है कि इंग्लैंड ने पूरा टेस्ट मैच एक देख लिया है कि 3 स्पिनर्स, हाँ 3 स्पिनर्स कहना बेकार है क्योंकि 2 ही स्पिनर्स ने टेक्निकली सही मानों में बॉलिंग कराई है. जाहिद का तो वो कोई रोल था नहीं. बट ये कि अबरार है अभी स्क्वाड में या नहीं है, इसको रिलीज़ कर दिया है. तो आई मीन वही वाली बात है कि अब या तो वो सेम 11 खिलाएंगे या मीर हमजा का इंक्लूजन होगा. दैट्स द ओनली ऐसा मैंने एक और रिपोर्ट पढ़ी थी कि मोहम्मद अली भी शायद खेल ले इन प्लेस ऑफ जाहिद. खेल सकता है, बट आई थिंक दे विल बी बेटर ऑफ प्लेइंग मीर हमजा, क्योंकि आपके पास एक नया बॉल का बॉलर आ जाएगा और पिंडी में ओवरकास्ट कंडीशन शुरू में होती हैं, स्पेशली इन द फर्स्ट सेशन ऑफ अ डे. तो वहाँ पे क्योंकि शुरू में बॉलर्स को थोड़ा सा स्विंग वगैरह मिलते हैं, तो मीर हमजा कैन बी एन हैंडी ऑप्शन. तो वो एक चेंज हो सकता है अगर जाहिद को ये लोग यूज़ नहीं करते. अदरवाइज ये कि क्योंकि इंग्लैंड ने 3 स्पिनर्स अनाउंस किए हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि दे आर गोइंग टू गो विद द अनचेंज 11. और अगर ये टॉस जीत जाते हैं पाकिस्तान वाले, तो द स्क्रिप्ट विल बी द सेम to post a decent total, get them out early, and then go win the test match. तो हाँ, अब अगर टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो that will be a big life saver for everybody. शान मसूद को भी एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा बिफोर द फॉरेन टूर्स. सेलेक्टर क्योंकि अब फ्री हैंड आके जावेद को मिल चुका है, तो ही विल गेन मोर पावर टू मेक डिसीजंस, क्योंकि भाई सर का विजन काम कर गया है. तो हाँ, अब ऑब्वियसली बात है कि अगर क्योंकि ये सीरीज जीतना और ये टेस्ट मैच जीतना ना सिर्फ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बिहाइंड द सीन जो चीज़ें चल रही हैं ना उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो शान को कंटिन्यू रखना एज अ कैप्टन, सीरीज जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है. आगे जावेद को जो फ्री हैंड मिला है उसको जस्टिफाई करने के लिए सीरीज जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है. आपको जो आपने एक सर्जरी आपने कहा था कि जी हम करेंगे और आपको मौका मिला सर्जरी करने का, और जो की भी गई है उसको आगे ले जाना या उसको एक कवर देना कि जी हमने बड़ा अच्छा काम किया है और देखें जी हमारी टीम बेहतर हो गई है, उसके लिए भी ये सीरीज जीतना ज़रूरी है. तो देयर आर थिंग्स देयर आर ऑन स्टेक, दे आर एट स्टेक, और जो कि डिपेंडेंट है इस टेस्ट मैच और इस टेस्ट सीरीज़ की जीत से. तो लेट्स सी कि ये लोग किस तरह से प्लान करते हैं. बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि इंग्लैंड इतने आसानी से गिव इन नहीं करेगा. और जिस तरह से उन्होंने बेन डकेट ने हमारे स्पिनर्स को डोमिनेट किया था इन दैट टेस्ट मैच, वो उस तरह की बैटिंग मेरे ख्याल से और भी उनके बैटर्स करना चाहेंगे, क्योंकि पिंडी में उन्होंने लास्ट टाइम भी कितने 700 रन मारे थे, ये 600 रन पहले ही दिन में मार दिए थे, कुछ ऐसा ही सीन था. तो दे आर वेरी फेमिलियर विद हाउ पिंडी इज. तो अगर उन्होंने टॉस जीत लिया और वो बैटिंग कर गए पहले, तो वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि वो लोग बहुत तेज़ उससे खेलेंगे. इवन इट मीन्स के वो अगर विकेट लूज भी कर रहे हैं ना ऑन अ रेगुलर इंटरवल, दे विल कीप द रन रेट अप ताकि वो
इतने रन्स कर जाएं कि वो पाकिस्तान की बैटिंग को अंडर प्रेशर लेकर आए, एंड दैट विल बी द गोल. England scored 650 kuch on that first test against Pakistan Pindi. But Archit, for India, what's the game plan there? Win the toss, bat first. Yeah, win the toss and put straight. Yeah, मतलब क्या सूरत हाल बनती आई है इंडिया थिंक के लिए? सूरत हाल तो इनकी अच्छी है बिकॉज आई थिंक कितना ओके सो इंडिया इज बैंकिंग कि हमारे स्पिनर उनके स्पिनर से बेटर है एंड स्पिन हमको भी नहीं खेलना आता और उनको भी नहीं खेलना आता सो आई गेस वी आर बैंकिंग ऑन कि अश्विन एंड जडेजा आर फार सुपीरियर स्पिनर्स than what New Zealand has to offer. Basically, that is what they are going to do. तो एजाज पटेल हो गया या रचन रविंद्रा से वो बॉलिंग कर लाते हैं. I don't think they have Santner in their team. So their bowling is okay. Had India scored 200 runs in previous test match in first inning, it would have been a different story altogether. So I think India is still a dominant force is game mein, and I don't think Rohit Sharma is going to just let it go. India will come hard, I think, whether they bat first or bowl first. Change, I think पंखे हमारे यहाँ भी लगे हैं. पंखे लग गया हमारे यहाँ भी. तो भाई अब पंखों के बाद चेंज तो लग रहा है मुझे. I don't know why have they added Washington Sundar. मतलब otherwise possibly like I'm saying, Gill comes in and Sarfraz goes out. But and apart from that, maybe they wanna rest Siraj or Bumrah and bring in Akashdeep. One and Bumrah, पता नहीं कैसे भाई, he's been declared vice captain. So is he planning to play all 3 test matches? Don't know. Maybe India wins this and then rest Bumrah out, whatever. So that is what looks like that is what they'll do. So ये हो गया. अब ना इंडिया के पास इतना ऑप्शन है यार, इट्स नॉट क्लियर कि क्या वो करने जा रहे. कोई ऑब्वियस नहीं है चेंजेस करना. मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर था जो इंजर्ड था, ठीक हो गया, उसको आना है. आई थिंक दे आर, अकॉर्डिंग टू मी, वो गिल को बाहर क्यों नहीं रख रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू सी गिल इन ऑस्ट्रेलिया, दे वांट टू सी केएल राहुल इन ऑस्ट्रेलिया. So I think I'll stick to my theory. Maybe I'm wrong, but this is what I feel is going to happen. And bowling mein, I would love to see Akshar Patel in, because he would be hungry to do something. And they said they added Washington Sundar because they wanted one more bowler to take the ball away from left-handers. अब प्रॉब्लम यह है कि अश्विन भी वही काम करता है और कुलदीप भी वही काम करता है. So I don't know where this thing of having the third bowler which is taking the ball away. So my team would be that you stick with Ashwin and Jadeja. Maybe you swap out a Washington Sundar for Kuldeep Yadav to give your batting more strength. That you want to do that. And that will give you 3 spinners and your batting becomes long. I think that is what they'll do. And you bring in Gill, you drop Sarfraz or whatever. Swap them out. Drop is a too harsh of a word. I don't think they're dropping him. I think he's going back to the bench and Gill deserves. So I think that might be there. एक कुलदीप को replace कर दें वो Sundar se. So that's one change. And then Gill comes in place of Sarfraz. Okay. तो चलें guys, आप लोग यहाँ तक आए हैं, please go ahead and like and subscribe. India will be facing New Zealand in Pune. Pakistan will be facing England in Pindi. दोनों टेस्ट मैचेस आगे पीछे स्टार्ट होंगे, तो hopefully it will be a jam-packed week of test cricket and hopefully comparative cricket as well. तो next time मुलाकात होती है, hopefully for a better outcome for India and Pakistan. अब तक के लिए इतना ही. अल्लाह हाफ़िज़.